Yesterday, we discussed a part of the n-harmonic oscillations or n-harmonic oscillator. Again, coming to same point and the concerned spacing between the vibration levels and the transitions from which level the transition will be there. So, in front, you are looking here. The bell, quantum bell, that quantum bell or vibration quantum bell, it is for the harmonic oscillator, but an harmonic oscillator doesn't follow the same. It follows this. We have talked much about that, and these are the parameters here. Energy varies along this side. It is internuclear distance that varies along this side. The particular function which describe this plot, which is given here, that is termed as the Morse quantum bell, and it is described by equation that is termed as the Morse function. Morse function is having the vibration energy. It is equal to the dissociation energy. It is dissociation energy related with the EQ. EQ means whenever there will be equilibrium distance between the two atoms, that means the particular bond length, into 1 minus E. A is the constant that is particular for the particular molecule. R equilibrium minus R, that is the displacement x either toward the positive side, means it is extension of the bond, or either it is the compression of the bond, and then square of it. So that is a estimation given by the Morse regarding the plot of this graph. When this value is being substituted in the Schrodinger wave equation, the estimated value of the energy levels in terms of wave number comes to be, it is E mu is equal to mu plus half. Mu is the vibration quantum number. Omega E, that is the equilibrium frequency in terms of wave number. Again the mu plus half, the term that is being squared, it is multiplied by omega E into xe. So new term is here. This term which is being minus from the term which were existing in case of the harmonic oscillator. ये term harmonic oscillator में भी आ रही थी. इसमें जो है एक्स्ट्रा टर्म आ रही है आपके पास, और एक्स्ट्रा टर्म किस में आ रही है? माइनस में आ रही है. इट मीन्स जो भी उसका लेवल आएगा, पर्टिकुलर वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ एच म्यू आए, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आए, उसमें से कुछ एक फैक्टर जो है वो लेस हो जाएगा. रीजन बीइंग here x is the n-harmonicity constant and n-harmonicity constant is 0.01, so its value is positive. So when positive value is multiplied by something here, then it is subtracted from this. Obviously the value of this is going to be less. अगर म्यू की वैल्यू, क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 और 2 है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो एक्सीड कर जाती है 5 और 6 और 7 तक, then the स्पेसिंग बिटवीन द लेवल्स इट बिकम्स लेसर और लेसर. तो यूजली इसका इफेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में कम देखने को मिलेगा. तो यहां पर वाइब्रेशन लेवल इक्वली स्पेस्ड हैं जैसे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में थे, लेकिन जैसे जैसे वाइब्रेशन क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक पहुंचे तो 6 से 7 तक डिस्टेंस कम हो गई, 7 to 8 8 to 9 और कम हो गई, और इनकी स्पेसिंग ऑलमोस्ट जो है वो एक दूसरे को टच करती नजर आ रही है. डीजेनरेसी हो रही है यहां पर थोड़ी बहुत, लेकिन जो स्पेसिंग क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है. तो बिकॉज ऑफ एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट और एन हार्मोनिक ऑसिलेशंस, द स्पेसिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल इट बिकम्स लेसर. द सिलेक्शन रूल फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर दैट आर इक्वल टू डेल्टा म्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3. हाउ दे आर डिफरिंग फ्रॉम द हार्मोनिक ऑसिलेटर? हार्मोनिक ऑसिलेटर जो वो स्टैंडर्ड मॉडल तरीके से था, तो उसमें +2 +3 वाले जो केसेस थे वो नहीं थे. इट मीन्स कि 0 से सेकंड को और 0 से थर्ड को जो है वो किस में नहीं है? हार्मोनिक ऑसिलेटर में वो वाली डिस्कशन नहीं है. लेकिन यहां पर थ्योरी अलाउ करती है कि इसमें जो है वो सिलेक्शन रूल +-1 +-2 और +-3 जो वो पॉसिबल हो सकते हैं. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आया हार्मोनिक टू एन हार्मोनिक ऑसिलेशंस. देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द सिलेक्शन रूल फॉर द ट्रांजिशंस. सो यू चेक फॉर द ट्रांजिशंस. सो दीज आर from the zeroth level to the first, that is the +1,
0 to the 2 that is the plus 2 and 0 to the 3 that is the plus 3. All these are the absorption line or absorption spectra. When any transition comes back from these, then that will be termed as the transmission spectra, and that will correspond to delta mu -1, -2 and -3. The particular this level where this Morse potential or Morse function ends, this is the equivalent to the energy, that is the DEQ, means this is the dissociation energy of the molecule. So if you check now transition from 0th level to the first level, so it is from 0th level to the first level. So this transition I am speaking. ये 0 level है यहाँ पर. If you are not able to see it, I am keeping it closer now. So that is the 0th level. It is 0th level to the first. That transition I am going to discuss. So when this type of transition is being discussed, then it is 0 to 1. Substitute the values here. It is 1 plus 1 by 2 into omega E. 1 plus 1 by 2 का square minus, then substituting here 0 and here 0, it is minus half omega E plus 1 by 4. क्योंकि यहाँ 0 plus 1 by 2 होगा तो 1 by 2 का square कितना हो जाएगा? 1 by 4 omega E into XE. When you calculate the value for this, then E 0 to 1, it comes to be equal to omega E minus 2 into omega E into XE. It omega E that is being taken out, it is 1 minus 2 XE. So transition occurs from the ground level to the first excited level, and the result is in front of you. It is equal to the exactly Babe number what some factor multiplied. तो मान लो ये बेब नंबर की वैल्यू आपके पास 500 सेंटीमीटर इनवर्स आ रही है. कितनी आ रही है? 500 सेंटीमीटर इनवर्स. इसको आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे. कितने फैक्टर से? उसको 1 से लेस कर रहे हो, जो भी फैक्टर है. अगर 1 से आप लेस कर रहे हो, दैट मीन्स दैट फैक्टर इज 0.8, 0.9, 0.7 इतना हो सकता है, क्योंकि 1 से लेस फैक्टर जो है वो 0.7, 0.6, 0.5 इस तरीके का आएगा. सो इट मीन्स कि 500 को जब आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्टर 500 वाला 0.9 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा? 9 5 या 45, 450 सेंटीमीटर इनवर्स पे चला जाएगा. इसका मतलब जो यहां पर उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है बेब नंबर में, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वो लाइन नजर आएगी, लेकिन थोड़ा सा उससे पीछे नजर आएगी, क्योंकि इसके साथ फैक्टर कितना मल्टीप्लाइड है? 1 माइनस 2 XE. एस्टिमेट करते हैं इसको कितना हो सकता है. अगर मैं XE की वैल्यू 0.01 भरता हूं, इट मीन्स इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.01. सो द वैल्यू विल बी 1 माइनस 0.02. 1 माइनस 0.02 मीन्स इट इज 0.98. तो 0.98 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो 490 के करीब आएगी. तो इसका मतलब लाइन आसपास 500 के आसपास ही दिखाई देगी. किसके पास दिखाई देगी? 500 के आसपास ही. इसी तरह से 0 to 2 अगर लाइन माइग्रेशन या ट्रांजिशन होती है तो उसमें आपको पास 2 ओमेगा ई. 500 ये है तो 500 का 2 कितना हो गया? 1000. तो आपको ये लाइन जो है वो 990 या 980 के करीब जो है वो नजर आ जाएगी. इसी तरह से थर्ड लाइन जो वैसे ही नजर आएगी 3 टाइम पे. लेकिन जो फर्स्ट बैंड होता है 0 to 1, ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, ये बहुत ज्यादा इंटेंस होता है. रीजन बीइंग द ग्राउंड स्टेट इज हाईली पॉपुलेटेड and we are able to see, because of various transitions from the 0 to 1, we are able to see the intense band. 0 to 2 जो वो सिलेक्शन माइग्रेशन तो होती है, लेकिन बहुत कम मॉलिक्यूल जो हैं या बहुत कम ट्रांजिशन जो वो 0 to 2 होंगी या 0 to 3 होंगी. 0 to 2 ट्रांजिशन जो होती हैं वो बहुत छोटी वो नजर आती हैं किसमें? स्पेक्ट्रा में, और इतनी स्मॉलर होती हैं कि कई बार तो इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है. दे आर टर्म्ड एज द ओवरटोन्स. क्या बोलते हैं उनको? ओवरटोन. 0 to फर्स्ट है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पर, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल बैंड.
अगर ग्राउंड स्टेट से सेकंड लेवल के लिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इट्स इंटेंसिटी विल बी लेस एंड इट इज नॉट इजी टू डिटेक्ट। 0 to 3rd लेवल तक अगर ट्रांजिशन होती है तो उसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन का खास लेना देना नहीं होता, फर्स्ट ओवरटोन फिर भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर जाता है। लेकिन स्पेक्ट्रा जो है वो मॉलिक्यूल का इतना कॉम्प्लेक्स होता है दैट सो मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग ओवरलैप्ड सिग्नल्स, एंड व्हेन द सिग्नल्स आर ओवरलैप्ड देन द स्मॉलर सिग्नल इट विल बी you can say that will be there in the hidden state in back in the back of the major signals, so we are less able to detect the overtones. So that is the definition of the fundamental band, overtones and second overtones. ये जितनी भी ट्रांजिशन थी हमने सारी की सारी ग्राउंड लेवल से डिस्कस की, कि ग्राउंड लेवल से फर्स्ट को, ग्राउंड लेवल से सेकंड को, ग्राउंड लेवल से थर्ड को, उसके अकॉर्डिंगली फंडामेंटल ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन जो हम डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि ग्राउंड लेवल से एक्साइटेशन ना हो लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड लेवल से सेकंड के लिए एक्साइटमेंट हो। जैसे ये ग्राउंड स्टेट ये रही नीचे जो मैंने शो कर रखी है, लेकिन म्यू इक्वल टू 1 से म्यू इक्वल टू 2 को जो है वो एक्साइटेशन हो, तो इसमें दोनों का डिफरेंस क्या है, डेल्टा म्यू इज इक्वल टू +1 आएगा, दैट इज अलाउड। लेकिन ये हम जनरली डिस्कस नहीं करते हैं। रीजन कि जो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल है उसमें पॉपुलेशन बहुत कम होती है, इतनी कम पॉपुलेटेड होता है फर्स्ट एक्साइटेड लेवल कि अगर ग्राउंड स्टेट में 100 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 1 मॉलिक्यूल होगा। कितना होगा? 1 मॉलिक्यूल के पास जो है वो दैट विल बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सो दैट ट्रांजिशन इज नॉट डिटेक्टेबल एट ऑल। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज। इट इज फाउंड दैट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 600 केल्विन देन the ratio of the molecules which are present in the first excited level and the ground state that becomes 0.09. अगर ढंग से देखा जाए that is the 9% or nearly 10% of the ground state population. अगर first excited state में 10% के करीब population हो जाए then there may be excitation of the molecule from the first to the second, and we can write for that equation it is the mu equal to 1 to mu equal to 2. So substituting the value, and when you substitute the value here, result is in front of you. It is mu equal to 1 to 2. It comes to be omega e into 1 minus 4xe. Now let us compare it with the fundamental band. फंडामेंटल बैंड भी ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2xe पे आ रहा है, और ये बैंड जो फर्स्ट से सेकंड के लिए है that is again coming into omega e into 1 minus 4xe. How much difference is there? It is suppose 500 multiplied by 1 minus 2 into 0.01. So 500 multiplied by 0.98. How much it will be? It will be 500 into 1 minus 4 into 0.01. That will be 500 multiplied by 0.96. तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 0.96 एंड 500 मल्टीप्लाइड बाय 0.98, तो 2 सिग्नल होंगे ये, एंड दीज 2 सिग्नल्स दे विल बी क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। एक अगर 590 पे आ रहा है तो दूसरा जो है वो 586, 87 पे या 85 पे जो है वो, सॉरी, वन इज कमिंग एट द 490 सेंटीमीटर इनवर्स, another will be there at 485 centimeter inverse. So these two bands will be there, or two spectral lines will be there, they will be quite close to each other. Now one which is there due to the transition from the first level to the second level, that is termed as the hot band. Reason being, the band is there because population has been increased due to the heating effect. कि आपने सैंपल को हीट किया है तो हीटिंग इफेक्ट से जो अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है।
दूसरा इसको हॉट बैंड इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये 10% की पॉपुलेशन थी पहले इसमें, तो 10% के हिसाब से ये बैंड जो है वो आपके पास वीक बैंड आएगा, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी. एज यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ दैट सिग्नल विल इंक्रीज. As you will decrease the temperature, intensity of that signal will decrease. So suppose this is the fundamental band that is appearing in the spectra. Then sidewise a very weak line appears. That weak line is due to the hot bands. किसकी वजह से? ये hot band की वजह से. But as you increase the temperature, then its intensity increases. Otherwise, by decreasing the temperature, its intensity will weaken. So that type of band is termed as the hot band. Yet we have discussed the vibration spectra, and we are not concerned here about the rotational spectra. But when I started the rotational spectroscopy, microwave spectroscopy, I said that prior to this in the BSc class we have read about the energy levels कि ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, या K सेल है, L सेल है, M सेल है. वहां इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट होती है एक सेल टू दूसरा, यानी 1s से लेके 2s में हो गई एक्साइटेशन, या एक लेवल है तो उससे दूसरे लेवल में जो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो वो हो गई. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं. क्या होते हैं? वाइब्रेशन लेवल्स. और एक वाइब्रेशन लेवल के बीच में जो है वो बहुत सारे रोटेशन लेवल्स होते हैं. अगर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, देन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर आल्सो accompanied बाय द वाइब्रेशन लेवल्स, एंड all the vibration levels are also accompanied by the transition between the rotational levels. अब एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल को एक्साइट करने के लिए मान लो 500 जूल की जरूरत पड़ रही है, तो वाइब्रेशन लेवल को में ट्रांजिशन करने के लिए जो है क्या है, उससे कम यानी 200 जूल की जरूरत पड़ेगी. रोटेशन के लिए क्या है, उससे भी कम की जरूरत पड़ेगी. तो अगर आपने 500 जूल उस सिस्टम को अप्लाई कर दी तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चेंज भी हो जाएगी, उसमें वाइब्रेशन चेंज भी हो जाएगी, उसमें रोटेशनल चेंज भी हो जाएगी. Now, as I am saying that electronic level is composed of various vibration levels. Vibration levels are composed of various rotation levels. It means whenever there will be a transition between the vibration levels, there will be a transition in the rotational level also. It means always vibrational spectra is affected by the rotational one, or it ever comes with the rotational spectra also. वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, सिंगल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा आएगा तो उसमें लाइंस आएंगी आपके पास, लेकिन जब रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी मिक्सअप हो जाएगा, देन दीज लाइंस विल ब्रॉडन अप बिकॉज दैट वाइब्रेशनल चेंज इज आल्सो accompanied बाय द रोटेशनल चेंज. तो हमेशा ऐसा होता है कि वाइब्रेशन के साथ साथ जो वो रोटेशन, मीन्स व्हेन यू आर सप्लाइंग एनर्जी टू द सिस्टम and you are saying that system is vibrating, it means also it is rotating, because very less amount of energy is required for the system to cause into rotation, and little bit more